पहलगाम कांडेर पर विश्वेर सामने पाकिस्तानेर मुखोश टेने खुले दिते विभिन्न देशे प्रतिनिधि दल पाठिয়েছে ভারত। সেখানে গিয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরছেন ভারতের প্রতিনিধিরা। ভারতের প্রতিনিধি দলগুলিতে বিভিন্ন বিরোধী দলের সদস্যরাও রয়েছেন। এরই মাঝে এক মন্তব্য করে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এলেন কংগ্রেস নেত্রী সামা মোহাম্মদ। এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সামা মোহাম্মদ বলছেন, ট্রাম্প বারবার বলেছেন এখনো পর্যন্ত 11 বার যে তিনি যুদ্ধবিরতি এনেছেন। ট্রাম্প প্রশাসন স্পষ্টভাবে বলেছে যে আমরা যুদ্ধবিরতির জন্য পাকিস্তান এবং ভারতের ওপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছি। ডিজিএমও বলার আগে ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করেছেন। ট্রাম্প ভারত ও পাকিস্তানকে একই জায়গায় রেখেছেন। তারা জিহাদের অপরাধী আর আমরা তাদের শিকার। 26/11 পর গোটা বিশ্ব আমাদের সঙ্গে ছিল, কিন্তু এখন আমাদের সঙ্গে কে আছে? পাকিস্তান কেন চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক পাচ্ছে? তারা আইএমএফ থেকে ফান্ড পেয়েছে, তারা রাশিয়ার থেকে $2.5 বিলিয়ন চুক্তি পেয়েছে। কি হচ্ছে? সবাই পাকিস্তানের সঙ্গে রয়েছে, কেন ভারতের সঙ্গে নয়? সেটাই প্রশ্ন উঠছে। চলুন শুনে নেওয়া যাক কি বললেন कांग्रेस नेत्री शामा मोहम्मद। सुनबो। कौन है ट्रम्प? ट्रम्प है अमेरिका की राष्ट्रपति, कोई सड़क में चलने वाले आदमी नहीं है। जब वो बोल रहा है 11 बार आई हैव डन द सीज फायर, मैंने ट्रेड एम्बार्गो डाला है, अपने ट्रम्प के अपने एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा गया है यूएस कोर्ट में कि हमने ट्रेड एम्बार्गो डाला है दोनों के ऊपर, तब सीज फायर हुआ। और आपको याद है डीजीएमओ बोलने से पहले ट्रंप ने कहा गया है। तो इसमें एक और बात है कि आप पाकिस्तान और इंडिया को एक ही बास्केट में डाला है। वो है जो आतंकवादी राज्य है, देश है, वो है पाकिस्तान। हम तो विक्टिम है, हमारे ऊपर वो आक्रमण करता है। और 26/11 के बाद सभी देश इंडिया के साथ है। आपको याद होगा अभी कौन है हमारे साथ? वहां तो एमओयू आफ्टर एमओयू। आईएमएफ ने उनको लोन दिया है 2.6 बिलियन कुछ डॉलर्स। उसके बाद यूएई के साथ एमओयू, सऊदी के साथ एमओयू। उसके बाद रशिया ने उनको 2.5 बिलियन डॉलर्स का एक ये दिया हुआ है कि उनका स्टील प्लांट्स रिवाइव करने के लिए। तो ये क्या हो रहा है? हमारे साथ बस ताइवान और इजराइल है, और फिर जयशंकर गया है तालिबान के पास, अफगानिस्तान के पास। तो ये क्या हो रहा है? सवाल उठता है ना कि चाइना, टर्की सब उनके साथ है। শুনলেন তো কি বললেন সামা মোহাম্মদ। ভারত যখন বিদেশে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে ঠিক সেই সময় কংগ্রেস নেত্রীর এই ধরনের মন্তব্যকে ঘিরে রীতিমতো আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন মহলে। এখানেই শেষ নয়। সামা মোহাম্মদ আরও বলেন, বিশেষ অধিবেশন কেন ডাকা হচ্ছে না? বিশেষ অধিবেশন ডেকে স্পষ্ট করে বলা হোক যে কি হয়েছে, কেন হয়েছে, 4 জিহাদি কোথায়, তাদের ধরা হোক। আর কি বললেন এই কংগ্রেস নেত্রী সেটাও শুনবো। विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे? वो है आज का जो सवाल हमारा। विशेष सत्र बुलाइए और साफ साफ बताइए। एक लोकतंत्र में साफ साफ बताना पड़ता है। तो आप साफ साफ बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कहां है ये जो 4 आतंकवादी, कहां है वो, उनको पकड़ो। विषय উল্লেখ্য, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধবিরতি চলছে, আর কার্যত সেই যুদ্ধবিরতির কৃতিত্ব দাবি করতে দেখা গিয়েছে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। যদিও ভারতের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের তরফেই প্রথমে যুদ্ধবিরতির আবেদন জানিয়ে ফোন করা হয়েছিল, আর সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। সম্প্রতি সেই বিষয়ে মুখ খুলেছেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে মমতা ব্যানার্জি বলেন, অপারেশন সিন্দুরের পর বিরোধী দলগুলো বিদেশে গিয়েছে আর আপনি এখানে ঘুরছেন আর পাবলিসিটি করছেন। আরে পাবলিসিটি তো আর্মির হওয়া উচিত, যুদ্ধ তো হয়নি। আমরা যুদ্ধ চাই না, আমরা শান্তি চাই। জেনে শুনেও এখনো জিহাদিদের কেন ধরতে পারলেন না? যদি আপনার মন এতটাই সৎ হয় তাহলে যারা আমাদের সিঁদুর নিয়ে নিয়েছে সেই জিহাদিদের আজ পর্যন্ত আপনি ধরেছেন? আপনি এত বড় নেতা আর আমেরিকা বললে 1 সেকেন্ডে চুপ হয়ে যান। চলুন কি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, এবার সেটা শুনি। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोधी दल चला गया विदेश में, और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। अरे पब्लिसिटी होना चाहिए तो आर्मी को, अगर कुछ हुआ तो पब्लिसिटी तो हुआ है। छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ, हम युद्ध नहीं चाहते। अगर हमारा देश को कोई युद्ध में अटैक ना करे, हम तो शांति चाहते हैं। लेकिन आप जानबूझ के आज तक जंगी लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया?
अगर आपका दिल इतना सच्चे है तो कहिए, जो हमारा सिंदूर ले लिया, जो बहनों को और जंगी को आज तक आप पकड़ाया, आज तक उसको आप मारा, आज तक कोई देख पाया? दिखाने के लिए इतना बड़ा नेता है आप। अमेरिका बोलने से 1 सेकंड में चुप हो जाता है, और उन्होंने करेंगे देश को रक्षा दर आ गया। आज बड़ा बड़ा बात करते हैं, सब खराब है, वो एक ही अच्छा है। ना अच्छा है ना सच्चा है, पता हम लोगों को सब है। इमेज बढ़ाने के लिए कोशिश एक तरफा नहीं होना चाहिए, किसी को गलत बना के। इसको रिप्लाई देने के लिए हम तैयार है, हर चीज को रिप्लाई हम देंगे। पहलगाम कांडेर पर বিশ্বের সামনে পাকিস্তানের মুখোশ টেনে খুলে দিতে বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে ভারত। সেখানে গিয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরছেন ভারতের প্রতিনিধিরা। ভারতের প্রতিনিধি দলগুলোতে বিভিন্ন বিরোধী দলের সদস্যরাও রয়েছেন। এরই মাঝে এক মন্তব্য করে আলোচনায় উঠে এলেন কংগ্রেস নেত্রী শামা মোহাম্মদ। এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শামা মোহাম্মদ বলছেন, ট্রাম্প বারবার বলেছেন, এখনো পর্যন্ত 11 বার, যে তিনিই যুদ্ধবিরতি এনেছেন। ট্রাম্প প্রশাসন স্পষ্টভাবে বলেছে যে আমরা যুদ্ধবিরতির জন্য পাকিস্তান এবং ভারতের উপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছি। কি বলেছেন শামা মোহাম্মদ, আসুন শুনি। कौन है ट्रम्प? ट्रम्प है अमेरिका की राष्ट्रपति, कोई सड़क में चलने वाले आदमी नहीं है। जब वो बोल रहा है 11 बार, आई हैव डन द सीज फायर, मैंने ट्रेड एम्बार्गो डाला है। अपने ट्रम्प की अपने एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा गया है यूएस कोर्ट में कि हमने ट्रेड एम्बार्गो डाला है दोनों के ऊपर, तब सीज फायर हुआ। और आपको याद है डीजीएमओ बोलने से पहले ट्रम्प ने कहा गया है। तो इसमें एक और बात है कि आप पाकिस्तान और इंडिया को एक ही बास्केट में डाला है। वो है जो आतंकवादी राज्य है, देश है, वो है पाकिस्तान। हम तो विक्टिम है, हमारे ऊपर वो आक्रमण करता है। और 26/11 के बाद सभी देश इंडिया के साथ है। आपको याद होगा अभी कौन है हमारे साथ? वहां तो एमओयू आफ्टर एमओयू। आईएमएफ ने उनको लोन दिया है 2.6 बिलियन कुछ डॉलर्स। उसके बाद यूएई के साथ एमओयू, सऊदी के साथ एमओयू। उसके बाद रशिया ने उनको 2.5 बिलियन डॉलर्स का एक ये दिया हुआ है कि उनका स्टील प्लांट्स रिवाइव करने के लिए। तो ये क्या हो रहा है? हमारे साथ बस ताइवान और इजराइल है, और फिर जयशंकर गया है तालिबान के पास, अफगानिस्तान के पास। तो ये विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे हो? वो है आज का जो सवाल हमारा। विशेष सत्र बुलाइए और साफ साफ बताइए। एक लोग আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।